ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଲିଟି ପଲ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଯଦି ଆମେ ସିପେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ କଥା କହିବା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ଏକ୍ଜାମିନର କୋଉଟା ପଚାରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାମିନର ତମଠୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମିନର ତମେ କୋଉଟା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସେଇଟା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେବଳ ବାଇ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲେ ହବନି। ଆମ ଭିତରେ କେତିକି କନସେପଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାଟା ଆମର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳେ ଯେ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେଉଁଠାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବାୟ ଏନାଲାଇଜିଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ତ ଆମର ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଥା କହିବା, ଆମେ କେଉଁ ଆପ୍ରୋଚକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ୍ ମେଥଡ଼। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ରହିଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼କୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମେମୋରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିର 2020 ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ପଚାରିଛି ନଟ୍ ଏ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଓରି। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଓରିର ଗୋଟିଏ ଫିଚର୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତିକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସ୍ପେକ୍ୟୁଲେଟିଭ୍, ନର୍ମେଟିଭ୍, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିରେ ବେସିକ୍ ମେନ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ। ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଠି ନର୍ମେଟିଭ୍, ସ୍ପେକ୍ୟୁଲେଟିଭ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପରେ ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବାଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଅପେକ୍ଷା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା, ନର୍ମେଟିଭ୍ ଅପେକ୍ଷା, କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଥିଓରିର ଗୋଟିଏ ଫିଚର୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି।
तो ट्रेडिशनल थ्योरी जोटा कि वैल्यू बेस्ड अप्रोच हमको देखा मिले, फिलोसॉफिकल अप्रोच देखा मिले, आउ क्वांटिटेटिव मेथड कहले जोटा कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन परे परे आरंभ होबार देखा मिलूँ। आउ एथिरे स्पेक्युलेशन ता सहित नॉर्मेटिव वैल्यूज एगुडा को कौन ना सब रिजेक्ट करा जाय थाए, डिसफेवर करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये चारिटा ऑप्शन भितर कोटा पोस्ट मॉडर्निज्म रो गोटे फीचर नहीं, जेमति कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सेप्ट मेटा नैरेटिव्स, पोस्ट मॉडर्निज्म एंटी फाउंडेशनलिज्म, एंटी रेशनलिज्म, ना इटा रिजेक्ट्स क्लास सॉलिडारिटी। तो एथिरु आंसर हे जिवो कोन ना, इट एक्सेप्ट्स मेटा नैरेटिव्स, एटा गोटे फीचर नुह। काहे कि ना पोस्ट मॉडर्निज्म सबु बेले एब्सोल्यूट ट्रुथ को रिजेक्ट करथाय। काहे कि ना पोस्ट मॉडर्निज्म कुहे जे सबु जिंस सबु बेले सत नुहे, एटा आमर परिस्थिति ऊपर मध्य डिपेंड करे। को परिस्थिति रे सेटा ठीक हेतिबा बेले आउ को परिस्थिति रे सेटा भूल हेइ पारे। सेथि पई इट रिजेक्ट्स मेटा नैरेटिव्स। जेते बेले जदि आमे लियोटार्ड कर थ्योरी देखिबा, सेठी से क्लियरली मेंशन करचंती जे पोस्ट मॉडर्निज्म होची इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। तो कोठी ना कोठी दे बोथ आर कांट एग्जिस्ट टुगेदर। पोस्ट मॉडर्निज्म ताहा सहित मेटा नैरेटिव्स ए दीटा जाक गोटिए जगह केबे मध्य रही पारिबे नाही। सेथि पई एठी पोस्ट मॉडर्निज्म सबु बेले एब्सोल्यूट ट्रुथ को सबु बेले हमरो मेटा नैरेटिव्स को रिजेक्ट करि थाए। तो एठी आंसर हे जिवो हमरो ए हे जिवो आंसर। तो पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स ग्रांड ट्रूथ और मेटा नैरेटिव्स लाइक मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। तो बी आउ सी कौन पे आंसर नहीं देखो, कहीं ना पोस्ट मॉडर्निज्म रो जदि पिलर कथा कहबा सेटा फाउंडेशन और रेशनलिटी ऊपर कोठी ना कोठी बेस्ड थिबार हमको देखिबा को मिले। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी डजंट एम्फसाइज ऑन। तो को थिरे को ए चारिटा ऑप्शन भितरु डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एम्फसाइज करूनी, इंपोर्टेंस दोन। तो सिविक कल्चर, ना ओपन डिस्कशन, ना कॉमन इंटरेस्ट, ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो देखो एठी डेमोक्रेसी कथा कहा जाउची, सेटा भी डेलिबरेटिव माने कोठी ना कोठी हमरो कथावार्ता जोठी कि किसी डिसीजन नबा पूर्वरु प्रत्येक व्यक्ति गुड़ाक भितर कौन ना गोटे डेलिब्रेशन हुए, गोटे तर्क वितर्क हुए। तो एठी कोठी ना कोठी सिविक कल्चर जोठी सबु सेक्शन ऑफ द पीपल मानक पाई डेमोक्रेसी काम करथबार देखिबा को मिले, ताहले एटा केबे मध्य एटार आंसर हबनी। ता सहित डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी रे हमकु ओपन डिस्कशन देखिबा को मिले, काहे कि ना डेलिब्रेशन मीन्स द डिस्कशन। तो सेथिपई एटा मध्य केबे हेले आंसर हबनी। आउ डेमोक्रेसी रे सबु बेले आमे देखुचंती जे कॉमन इंटरेस्ट कथा कुआ जाय। डेमोक्रेसी केवल जणे व्यक्ति पई केबे हेले काम करे, से समस्तंकर इंटरेस्ट को नेकी काम करथाय। सेथिपई सी ऑप्शन मध्य हबनी। तो बळी गला डी, जो थिरे लिखा जायछि जे इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो डेमोक्रेसी केबे हेले जणे व्यक्तिर मंगल पई काम करिबोनी, जणे व्यक्तिर इंटरेस्ट पई काम करिबो नाही। सेथिपई एटार आंसर हे जिवो डी। तो इट फोकसेस ऑन कॉमन गुड रीच्ड थ्रू पब्लिक रीजनिंग। तो एटा केमती पाई परिबा, बाय डेलिब्रेशन। तो सेथिपई ए बी सी जोठारे आमे देखुचंती जे ए पॉइंट गुडाक कोठी ना कोठी डेलिब्रेशन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करुछि, एक्सेप्ट ऑप्शन डी जोटा कि गोटे सेल्फिश गेन को सपोर्ट करुछि। क्वेश्चन नंबर 4, नेगेटिव फ्रीडम इज सुपीरियर टू पॉजिटिव फ्रीडम, एटा किए कहिथिले?
तो देख, ईसा ईसाया बर्लिन, ना टी.एच. ग्रीन, ना जे.एस. मिल, ना इमानुएल कैंट। तो जदि आम इमानुएल कैंट कथा कहबा, ये कौन ना जड़े पॉजिटिव लिबरालिस्ट थिंकर। जे.एस. मिल जी कि गोटे ट्रांजिशनल थिंकर, माने सी प्रथम नेगेटिव लिबर्टी कथा कहले परे परे समय से समय कौन ना पॉजिटिव लिबर्टी कथा मध्य कहउछंती। से गोटे ट्रांजिशनल थिंकर भाबे नेगेटिव आउ पॉजिटिव लिबर्टी भितरे गोटे ब्रिज भाबे काम करछंती, ब्रिज भाबे काम करछंती। टी.एच. ग्रीन, he is a great supporter of positive liberalism, positive liberty। तो बड़ी गले किए ईसाया बर्लिन, जहाँकर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, फोर एसेस ऑन लिबर्टी, एई भली एसे आ बुक रे सी नेगेटिव फ्रीडम को, नेगेटिव लिबर्टी को कौन ना बेसी गुरुत्व दौरान रेदर देन पॉजिटिव लिबर्टी। तो एठी हमर आंसर हेसिबो ऑप्शन ए, जोटा कि होची ईसाया बर्लिन। तो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, बर्लिन आर्ग्यूड नेगेटिव लिबर्टी और नॉन इंटरफियरेंस। आमे जमती जानी छंती जे नेगेटिव लिबर्टी रे स्टेट रो नॉन इंटरफियरेंस कथा कहा जाउछि, जोटा कि गोटे व्यक्ति को टोटलिटेरियनिज्म आड़क गति करबा पई सपोर्ट करथाय। माने सी निजर ऊपर निजे ही कंट्रोल करि परिबो, सेठी स्टेट रो रोल किछि भी देखिबा को मिले ना। ता सहित जदि आमे ग्रीन कि कैंट, इमानुएल कैंट, ता सहित मिल, एमाने कोठी ना कोठी पॉजिटिव ता सहित हार्म प्रिंसिपल, जे कि मिल हार्म प्रिंसिपल देइचंती, एगुडा को कहा जाइछि। हाँ, एटा मन रखिबो, कैंट सेल्फ रियलाइजेशन कथा कहउचंती। एबे आसला मैच करिबा पई कॉलम ए को कॉलम बी, जेमति कि हमरो ए बी सी डी को 1 2 3 4 मैच करिबार अछि। एठी देखो तो दी तीन जण थिंकर अछंती जहाँ को आमे माने पूरा जानी छंती, जेमति के राल्स हे जानतु, माइकल वाल्जर हे जानतु, थॉमस पोगे हे जानतु, एमानन को आमे जानी छंती। ता सहित सैंडल को मध्ये जानी छंती, जे कि जणे कम्युनिटेरियन थिंकर। तो राल्स को आमे भलो भाबरे जानी छंती, काहे कि ना तांको आमे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रे पढी छंती, ता सहित तांको आमे पॉलिटिकल थ्योरी रे मध्ये पढी छंती। तो राल्स सबु बेले वेल ऑफ इग्नोरेंस कथा कहउछंती, जेते बेले से तांकर कंट्रारियन थॉट दबा पई चेष्टा करूछंती, सेठी वेल ऑफ इग्नोरेंस कथा से देइछंती। तो एठी आमे जदी बी को ए को मैच कर दबा, तो बी रो ए को की अछि ना गोटे रे ही अछि। तो एठी हमरो आंसर हेसिबो कोन ए। तो एमती एलिमिनेशन मेथड यूज करा जाय था। तो एठी आमे केवल गोटे आंसर को जानि देई कि मध्य क्वेश्चन को क्रैक करि परिबा। ता सहित जदि आमे अलगा ऑप्शन गुडा को देखिबा, सैंडल प्रोसीजरल रिपब्लिक कथा कहउछंती, थॉमस पोगे ग्लोबल जस्टिस कथा कहउछंती, आ माइकल वाल्जर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कथा कहउछंती। तो एठी 1 रो 2 हे जिवो, बी रो 1, सी रो 4 आ डी रो 3 हे जिवो। तो आंसर हे जिवो ए, जोठी सैंडल कोन प्रोसीजरल रिपब्लिक कथा कहउछंती, राल्स वेल ऑफ इग्नोरेंस कथा कहउछंती, थॉमस पोगे ग्लोबल जस्टिस कथा कहउछंती, आउ माइकल वाल्जर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कथा कहउछंती। तो एठी जेमति कि आमे एलिमिनेशन मेथड यूज करि परिबा, गोटे जिंसो जानि मध्य जति एग्जामिनर सेमति हमर ऑप्शंस तयारी करथाय, नहले केतेटा क्वेश्चन एमति मध्य थाउची जोठी आप तीन जण जानिले ही आमे आंसर को क्रैक करि परिबा। नॉट इन आलमंड एंड वर्बास क्लासिफिकेशन। तो आलमंड आउ वर्बा जेते बेले हमर पॉलिटिकल कल्चर देइछंती, सेठी से तीनटा सेक्शन ऑफ द पीपल कथा कहउछंती, जेमति कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव आ इवैल्यूएटिव, ये तीनटा कथा कहउछंती। तो एठी से इंपेरिकल भली किछि कांसेप्ट ही देइ नाहंती। तो सेति पई एटार हमर आंसर हे जिवो ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी ହେଇଯିବ जोटा कि एम्पिरिकल। तो देख कौन पाई ना दे यूज कॉग्निटिव जोटा कि नॉलेज बेस्ड, अफेक्टिव जोटा कि फीलिंग्स बेस्ड, आउ इवैल्यूएटिव जोटा कि जजमेंटल बेस्ड होता है। तो एठी एम्पिरिकल कथा कुहा जाए ना। एम्पिरिकल इज ए रिसर्च मेथड नॉट ए ओरिएंटेशन। तो आमको ये तीन टा ओरिएंटेशन देखा मिलला, किंतु एम्पिरिकल से तीन टा ओरिएंटेशन भितर गोटे ओरिएंटेशन नुहे, से यहाँ केबे मध्य आंसर हो पारिबो नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच हाइपर ग्लोबलिस्ट व्यू इज करेक्ट। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रु कोटा एई ऑप्शन गुडाक भितर करेक्ट देख। तो एठी डिमाइज ऑफ नेशन स्टेट कथा कहा जाउची ना, जियो पॉलिटिक्स रिमेन्स कथा कहा जाउची, ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कथा कहा जाउची ना, सेल्फ सर्विंग मिथ कथा कहा जाउची। एठी देखो जदि आमे हाइपर ग्लोबलिस्ट कथा कहिबा माने वसुधैव कुटुंबकम बोली मध्य आमे कहि परिबा, बा आमे एटा मध्य कहि परिबा द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, जोठी हमरो ए हाइपर ग्लोबलिस्ट को अचीव करिबा पई हेले स्टेट कोठी ना कोठी एज ए हडल भाव काम करे। तो सी आमको ए हाइपर ग्लोबलिस्ट को अचीव करिबा पई दिए नहीं, सेथि पई डिमाइज ऑफ नेशन स्टेट कथा एठी कुहा जाउची। तो सेथि पई एटा करेक्ट आंसर हे छिबो। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स रिमेन, हाँ कौन पाई ना हाइपर ग्लोबलिस्ट रे ग्लोबल पॉलिटिक्स हमको देखा मिले, ता सहित ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा मिले। आउ एठी इंडिविजुअल को गुरुत्व न दिया जाए कि होल वर्ल्ड को गुरुत्व दिया जाउची, होल वर्ल्ड को गुरुत्व दिया जाउची। सेथि पई एटा सेल्फ सर्विंग गुटे मिथ भाबर मध्य, तो सेल्फ सर्विंग मिथ भाबर काम कर। ऑप्शन आंसर ए है आंसर। हाइपर ग्लोबलिस्ट बिलीव द स्टेट इज बिकमिंग ऑब्स्टेकल ड्यू टू ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट पाई स्टेट एज ए ऑब्स्टेकल भाबरे काम करिथाय। बी एंड डी आर व्यू एज स्केप्टिक्स इज द ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स विथ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी केमती ओरिजिनेट हेसी ना, जदि आम आरिस्टोटल कथा कहबा, आरिस्टोटल तो डेमोक्रेसी को विरोध करथुले, सी पॉलिटी को एज ए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहउचंती। सिसरो तो ये डेमोक्रेसी को किछ कहू नाहंती। लॉक माने हमरो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कथा कहू नाहंती। रूसो जे कि जनरल विल देइतले, आ ए जनरल विल रे ही हमको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देखा मिले, से इंटर आंसर हो ऑप्शन डी। तो रूसोस जनरल विल रिक्वायर्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, से रूसो हो आंसर। लॉक जे कि फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाए, आउ फादर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मध्य कहा जाए। आरिस्टोटल जे कि पॉलिटिक को सपोर्ट करथले ना कि मास पार्टिसिपेशन कथा कहथले। द लास्ट वन इज नॉट बर्न बट रेदर बिकम ए वुमेन, एटा किए कहथिले? साइमन डी बिहेवियर कहथिले ना, फ्रीडमैन कहथिले, मिलेट कहथिले ना, ग्रीर कहथिले, किए कहथिले? तो एटा माने गोटे एब्सोल्यूट क्वेश्चन, तो तुमको एटा निहाती जानिबा दरकार। माने तमे जानिथिले ही एमतिकार क्वेश्चन रा आंसर करि परिबो, तमे एठी गेस लगै परिबो। तो एटा कहथिले हमरो साइमन डी बिहेवियर, जे कि कहथिले वन इज नॉट बर्न बट रेदर बिकम ए वुमेन। गोटे नारी तैयारी हुए नहीं, ताकू समाज नारी तैयारी कर दी था, गोटे महिला भावे तैयारी कर दी था। तो एठी द फाउंडेशनल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड सेक्स, तो सेकंड सेक्स रे एई कोड कथा से कहउचंती, जोठी कि से सेक्स आउ जेंडर भितर कोना डिफरेंशिएट करचंती। जेमति कि सेक्स टा गोटे बायोलॉजिकल थिंग, किंतु जेंडर कोना सोसाइटी तैयारी करथे, सोसाइटी क्रिएट करथे। सेथि पई ए जेंडर को नहीं कि सी एटा कहिथिबार देखिबा को मिले जे जणे
ତିଆରି ମାନେ ନାରୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାଏ, ତାକୁ ନାରୀ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଅଲଗା ଅପସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମର ଫିଡମେନ୍ ଫେମିନାଇନ୍ ମିଶିକୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ୍ୟାଟ୍ ମିଲେଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ କଥା, ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜର୍ମାନ ବ୍ରିଡ୍ ଆମର ଫିମେଲ୍ ଏନୋଜ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସୋ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ତମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ର ପିଡିଏଫ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବ। ସୋ କିପ୍ ୟୋର ପଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ ପଲିଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।